السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 8۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ کیسے ہو معاذ؟ ویری ڈیشنگ اینڈ ہینڈسم، اس نے خاص انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شوخی سے جواب دیا تو صوبیہ ہنسی۔ اس کی خوبصورت ہنسی پر معاذ کو بے ساختہ ہی بشرا کا خیال آیا۔ وہ بھی بے پناہ خوبصورت ہنسی کی مالک شخصیت تھی اور صوبیہ سے بات کرتے ہوئے معاذ کو احساس ہوا تھا کہ دو بالکل مختلف شخصیت کی مالک لڑکیوں میں سے ان کی ہنسی مشترکہ خصوصیت ہے۔ بشرا کے نقش و نگار اور رنگت سے ذرا مغربیت جھلکتی تھی۔ اس کے بال چھوٹے تھے اور لباس کے معاملے میں وہ قدرے بے پرواسی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں صوبیہ مکمل طور پر مشرقی حسن کی مالک تھی۔ گہرے سیاہ چمکتے بالوں اور آنکھوں والی صوبیہ کے کمر سے بھی نیچے جاتے ہوئے گھنے بالوں پر ایک عالم فدا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر موجود لمبی اور گھنیری پلکوں کی جھالر کتنے دلوں کو مسخر کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی رنگت گلابی اور جلد شیرخوار بچوں کی طرح نرم و نازک سی تھی۔ وہ اپنی بے حد خوبصورت کھڑی ناک میں ہیرے کی لونگ پہنا کرتی تھی اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ لونگ اس کی ناک کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے یا اس کی ناک میں آ کر لونگ کی قسمت جاگی ہے۔ اس کے بھرے بھرے گلابی ہونٹوں پر شبنم میں گلاب کی ادکھلی کلی کا گمان ہوتا تھا۔ وہ اپنے راج ہنس جیسی گردن میں سونے کی باریک سی زنجیر پہنا کرتی تھی، جس کی لمبائی اتنی تھی کہ بس کالر بون تک ہی آ پاتی تھی، اور زنجیر میں موجود موتی کی شکل کا چھوٹے نگ کا جڑاؤ لاکٹ کالر بون کے پاس بننے والے ہلکے سے گڑھے میں پڑا اپنی چھپ دکھاتا رہتا تھا۔ صوبیہ کو پہنے اوڑھنے کا بڑا سلیقہ تھا۔ وہ ایک حد میں رہتے ہوئے فیشن کے مطابق لباس پہنتی تھی اور اس کے لباس میں مشرق کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ خصوصاً وہ دوپٹے بہت بڑے اور بڑے سلیقے کے ساتھ اڑا کرتی تھی۔ تو یہ معاذ تھا جس نے اتنے بے تحاشا حسن کی مالک صوبیہ اور بشرا کے درمیان ایک قدرے مشترک ڈھونڈ نکالی تھی۔ بس فرق تھا تو یہ کہ صوبیہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورت ہنسی اور مسکراہٹ بھی اس کے بے تحاشا حسن میں مدغم ہو جاتی تھی، جبکہ بشرا خوبصورت ضرور تھی لیکن یہ خوبصورتی بے تحاشا نہیں تھی، مگر جب وہ ہنستی تھی تو ایک دم سے جگمگا اٹھتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا خود ہی اپنی سیرنگیز شخصیت کے سیر میں ڈوب کر رہ گئے؟ صوبیہ بشرا کا آپس میں تقابل کرتا وہ سوچوں میں گمسا ہو گیا تھا۔ صوبیہ نے چھیڑنے والے انداز میں سے ٹوکا تو اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ وہ آنکھوں میں شریر سی مسکراہٹ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آپس میں ویڈیو کال کے ذریعے بات کر رہے تھے، اس لیے ایک دوسرے کا ہر تاثر اچھی طرح جان سکتے تھے۔ میری شخصیت کی سیرنگیزی کا ذکر چھوڑو، میں نے اس حوالے سے قصے سنانا شروع کیا تو وہ آج کی تاریخ میں ختم نہیں ہوں گے۔ بس اتنا جان لو کہ 10-20 تو روزانہ یوں ہی پٹ سے راہ میں گر کر جان دے دیتی ہیں، باقی کتنے اپنی جگہ ہی تڑپ کر رہ جاتے ہیں اس کا میں نے کبھی حساب رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں صوبیہ کو جواب دیا۔ اوئی اللہ، اس کا مطلب ہے کراچی میں لڑکیوں کا قحط پڑتا جا رہا ہوگا۔ تم چاہو تو تھوڑی لاہور سے درامد کروا لو۔ جان بوجھ کر آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس نے حیرت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ لاہور سے ایک لڑکی کی درامد کروانے پر غور تو ہوتا رہتا ہے، لیکن میں ہی ڈرتا ہوں کہ کہیں ساری زندگی کڑوی گولے نگلتے اور بازو میں سوئیاں چبوتے نہ گزارنی پڑے۔ اس نے شوخی سے صوبیہ کو چھیڑا تو اس کے گلابی رخساروں کا گلابی پن کچھ اور بھی بڑھ گیا اور گھنی پلکیں فوراً جھک کر گلابی رخساروں پر سایہ فگن ہو گئی۔ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی اور ارینا کی وجہ سے جانتی تھی کہ ارینا سمیت گھر کے دیگر افراد بھی اسے معاذ کی دلہن بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن باقاعدہ رشتہ ڈالنے کے لیے معاذ کے برسر روزگار ہو جانے کے منتظر ہیں۔ خود اس کی تعلیم بھی ابھی جاری تھی، اس لیے اس سلسلے میں کسی اجرت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ رشتے اس کے بہت آتے تھے، لیکن اسے صاف الفاظ میں گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ تعلیم مکمل ہونے تک وہ ایسے کسی جھنجھٹ میں پڑھنا پسند نہیں کرے گی۔ اصل میں خود اس کے دل میں معاذ کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے اور وہ اتنی مہلت حاصل کرنا چاہتی تھی کہ معاذ بھی تعلیم مکمل کر کے سیٹل ہو جائے۔ معاذ سے اس کی اچھی دوستی ضرور تھی، لیکن معاذ نے کبھی کھل کر اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بس کبھی کبھار ایسی ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کی باتیں کر لیا کرتا تھا جو دل کے تاروں میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ تو یہ بتاؤ کہ آج تمہیں میری طرف سے کیا تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ تم نے اپنا قیمتی وقت خرچ کرتے مجھ غریب کو فون کر ڈالا؟ ورنہ تو سننے میں یہ آتا ہے کہ موصوفہ زیادہ مصروف خاتون پورے پاکستان میں کوئی اور نہیں۔ اس نے صوبیہ کے شرمانے کو محسوس کر کے فوراً ہی موضوع بدل دیا۔ صوبیہ کے حوالے سے اسے اپنے جذبات کے بارے میں خود بھی کلیئر نہیں تھا۔ وہ جتنی ذہین اور حسین لڑکی تھی، اس سے تو ہر شخص ہی متاثر ہو سکتا تھا۔ اسے وہ بھی اچھی لگتی تھی، لیکن اسے جیون ساتھی بنانے کے معاملے میں وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اصل میں بھی اس حوالے سے اس نے کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ اس کی بے چین روح اسے اکساتی تھی کہ وہ عام لوگوں سے ہٹ کر کچھ کر دکھائے۔ تعلیم، نوکری اور پھر شادی والی سیدھی ڈگر پر چلتے جانے پر اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ صوبیہ سمیت کسی کو بھی اپنا پابند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صوبیہ بھی ایک سنجیدہ اور بردبار لڑکی تھی اور اس نے کبھی کھل کر معاذ کے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے چھپتے تو صوبیہ کی بھی کسی نہ کسی ادا سے اس کے جذبات کا اظہار ہو ہی جاتا تھا۔ جیسے وہ بھی اس کے چھڑ جانے پر شرمائی تھی اور معاذ نے خود پر ایک بوجھ سا پڑتا محسوس کیا۔ اس نے فوراً احساس ہو گیا تھا کہ جب وہ اپنے جذبات کے معاملے میں کلیئر نہیں ہے تو اسے صوبیہ سے اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کر کے اس کے جذبات میں ہلچل مچانے کی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اس نے موضوع گفتگو بدل دیا تھا
था और इससे इसके फोन के बारे में सबब पूछ रहा था। ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी, बस रात कुछ अजीबोगरीब ख्वाब आते रहे थे और मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम किसी परेशानी या तकलीफ में हो, तो मैंने सोचा कि चलो फोन करके खैरियत मालूम कर लूं। इसके पूछने पर शोबे ने कुछ झिझकते हुए बताया तो माज अपनी जगह दंग रह गया। दूर बैठे किसी शख्स को कुछ भी बताए बगैर अगर ये इल्म हो जाए कि आप किसी मुश्किल या तकलीफ में हैं तो इस शख्स के जज्बे की शिद्दत वाज़ेह हो जाती है। ये तो दिल का दिल से बहुत ही खास राब्ता होता है जो मादी असबाब के बगैर भी दूसरे के बारे में इल्हाम सा होने लगता है। सोबिया इससे इस हद तक दिली वाबस्तगी रखती थी, इसका तो इसे अंदाजा भी नहीं था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? माज को खामोश पाकर सोबे ने से टोका। तुमने ख्वाब में क्या देखा था जो परेशान होगी? माज ने इससे पूछा। ये मैं नहीं बताऊंगी, कहते हैं बुरे ख्वाब किसी को सुनाने नहीं चाहिए वरना इनकी ताबीर सामने आ जाती है। इसने सख्ती से इनकार कर दिया। उफ, मेडिकल की स्टूडेंट, इतनी गैर साइंसी बातें। मैं तुम्हें इतनी कदामत पसंद लड़की नहीं समझता था। माज ने जानबूझकर इसकी बात से इख्तिलाफ किया। तुम मुझे कदामत पसंद कह सकते हो, लेकिन मैं बास मामलात में अक्ल और साइंसी दलाल के मुकाबले में दिल की गवाही मानने की कायल हूँ। अकल और साइंस धोखा भी दे जाते हैं लेकिन दिल की गवाही हमेशा सच निकलती है। इसने बुरा बनाए बगैर जवाब दिया। बहरहाल तुम मेरी तरफ से इत्मीनान रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मजे से अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ हूँ। तस्दीक के लिए चाहो तो अपने मामू जान से राब्ता कर सकती हो, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा ये निकम्मा कजन इनके लिए कितना बड़ा दर्द सर है जिसे वो चाहते हुए भी अपने हिसाब से सिधाने में नाकाम है। वो जानबूझकर लाउबालीपन का मुजाहरा कर रहा था। सोबेस में तो किसी को भी अपने हवाले से तफ्शीश में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए कामिर सुल्तान वाले चक्कर में जो गड़बड़ चल रही थी किसी को इसकी हवा भी नहीं लगने दी थी। मामू जान अपने हिसाब से ठीक नाराज होते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि तुम अपनी जहानत और सलाहियत को जाया कर रहे हो। तमाम वालिदैन की तरह इनकी भी फितरी ख्वाहिश है कि तुम किसी आला मुकाम पर पहुंचो, लेकिन क्या किया जा सकता है कि तुम्हारे अंदर जो बेचैन रूह है वो तुम्हें इनकी इस ख्वाहिश की तकमील नहीं करने देती। जिस दिन उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया तुम जरा मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक हो और तुमसे इस किस्म की तवक्को रखना तुम पर जुल्म करने के मुतरादिफ है, तो वो खुद अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। तुम्हें इनकी बातों पर जरा दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो तय है कि मुख्तलिफ लोगों को अमूमन इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आज तो सोबिया इसे हैरान करने पर तुली हुई थी। वो आपस में कजन्स थे और मुख्तलिफ शहरों में रहने के बावजूद उनके दरमियान अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो इस हद तक इसे समझती थी इसका इसे अंदाजा नहीं था। मैं दिल बर्दाश्त नहीं होता और अपने हिसाब से अब्बू को हैंडल कर ही लेता हूँ, लेकिन इस बात का मुझे भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि मुझे जैसे लोग अकेले खुद मुश्किल का शिकार नहीं होते, इनके साथ रहने वाले भी मुश्किल में मुब्तला रहते हैं, इसलिए हम जैसों से दूर रहना ही अच्छा होता है। इसने बातों बातों में सोबिया को कुछ समझाने की कोशिश की। दुनिया में कुछ लोग मुश्किल पसंद भी होते हैं। सोबिया ने बरजस्ता इसे जवाब दिया। इस जैसी ज़हीन लड़की माज की बात का मतलब न समझती, ये कैसे मुमकिन था? इस बार माज ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो इस मौजू को तूल नहीं देना चाहता था। सोबिया ने भी मजीद बात नहीं बढ़ाई और दो चार इधर उधर की बातें करने के बाद सिलसिला मुनक़ते कर दिया। इसके सिलसिला मुनक़ता कर देने के बाद भी माज लाशूरी तौर पर इसके बारे में सोचता रहा। सोबिया जैसी हमारा सिर्फ लड़की जिंदगी के सफर में इसकी शरीक हयात होने की ख्वाह थी, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक तरह से वो इसे अपनी खुशकिस्मती भी करार दे सकता था, लेकिन वो क्या करता? अभी इसका अपना मुस्तकबिल धुन में लिपटा हुआ था और इस गैर यकीनी सूरत हाल में वो सोबिया को आस की डोर नहीं थमा सकता था। बिल्ली थल्ले से बाहर आ गई है। मतलब ये कि मेरे पास ये ज़दानी बिल्डर्स वालों की तरफ से फ़ोन आया था। बात करने वाले ने अपना तारुफ तो नहीं करवाया, लेकिन इसके अल्फाज ही इसका तारुफ थे। क्या कह रहा था वो शख्स? बुशरा की इत्तला पर माज के कान खड़े हुए। इत्तफाक से दोनों ही का फ्री पीरियड था, इसलिए इन्हें मुलाकात का मौका मिल गया था और वो सरसब्ज की तरह घास पर बैठे एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना क्या है, बस बड़े ठंडे लहजे में धमकी दे रहा था कि शिराड वालों का निशाना इतना खराब नहीं था कि कोई कल का लोंडा मोटर बाइक की करतब दिखाकर बच निकलता। ना ही हमारे पास असली की कमी है। किसी को खत्म करने का फैसला कर लेते तो सिर्फ एक ही पिस्टल के इस्तेमाल काफी समय थे। हम तो सरेआम तुम्हें भून डालते और कोई रोकने वाला नहीं होता, वगैरह वगैरह। मैंने इससे कहा कि इस रहमदिली का शुक्रिया। अब ये भी बता दो कि इतनी मेहरबानी क्यों की? सिर्फ गोलियां ही चलाई और जान बख्शी कर दी। तो वो हंसने लगा, फिर बोला कि हम खामखा की खूरेजी पसंद नहीं करते और कोशिश करते हैं कि इसके बगैर ही काम चल जाए। अब ये दूसरी पार्टी पर होता है कि हमारे समझाने पर समझ जाए। मैंने पूछा कि जनाब मुझ गरीब को क्या समझना चाहते हैं? तो बोला कि बात बिल्कुल सीधी है। तुम ये ज़दानी बिल्डर्स वालों के मामले में जितनी टांग अड़ा चुकी हो इसे काफी समझो और अपनी टांग वापस खींच लो। आगे के मामलात में तुम चुप रहोगी तो हम भी जो कुछ हो चुका है भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी सूद समेत बहुत सारा वसूल कर लेंगे। बुशरा ने इसे तफसील से आगाह किया। यानी मेरा अंदाजा ठीक निकला, ये ज़दानी बिल्डर्स वालों की बदमाशी थी। कामिर सुल्तान ने शायद अपने बड़ों को कुछ बताया नहीं होगा, कम से कम अपने बदमाशी के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताया होगा। इनकी जो बेइज्जती हुई और गत बनी है इसकी असल वजह तो वो बताने के लायक नहीं होंगे। वो अपने तौर पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो भी इतने खुलम खुला नहीं, इसलिए मुझे शक था कि ये ज़दानी बिल्डर्स वालों की तरफ से तुम्हें डराने धमकाने की एक कोशिश है। माज ने तबसरा किया। आपका दूसरा अंदाजा भी बिल्कुल ठीक था। वो लोग जमीन के असल मालिक कयूम सिद्दीकी के वतन वापस आने से घबरा गए हैं। इत्तफाक देखे कि धमकी वाले फोन के फौरन बाद मेरे पास कयूम सिद्दीकी की कॉल आई। इत्तफाक से पहले ही पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे, इसलिए किसी के भी अंदाजों से बहुत पहले वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने यहाँ एक काबिल वकील की खिदमत भी हासिल कर ली है। जमीन की मलकियत के हवाले से इनके पास जो सबूत हैं, इसके साथ ही वो ज़दानी बिल्डर्स वालों की जालसाजी के सबूत भी शामिल करना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझसे राब्ता किया था और पूछ रहे थे कि क्या मैं इनकी मदद करना पसंद करूंगी। तो फिर तुमने क्या जवाब
जवाब दिया। माज ने दिलचस्पी से पूछा, ऑफ कोर्स मैंने हाँ कर दी। आपको मालूम है कि मैं हक का साथ देने की कितनी ज्यादा कायल हूँ। बुशरा ने झट से जवाब दिया और मजीद बताने लगी, कल मैं कयूम साहब की ख्वाहिश पर इनके साथ इनके वकील से मिलने जा रही हूँ। उन्हें मुझसे कहा है कि वो खुद मुझे मेरे घर से पिक कर लेंगे। तुमने भी बता दिया होगा कि तुम्हारी ही गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है। माशोखी से सर, वो तो बताना ही था। मेरे किसी भी शनासा से बात ज्यादा से मख्फी नहीं रहती कि कार के नाम पर मेरे पास जो एक अदद 4 पहियों वाला डब्बा है वो चलता कम और वर्कशॉप पर ज्यादा खड़ा रहता है, इसलिए मैं अक्सर दोस्तों से लिफ्ट की मोहताज रहती हूँ। माज की बात का बुरा मनाए बगैर इसने हंसकर जवाब दिया, इसका मतलब है मुझे आज भी तुम्हें लिफ्ट देनी पड़ेगी। माज ने से घूरा, दे दें तो मेहरबानी होगी, एक बेकार बंदी की दुआ मिल जाएगी। इसने मजलूम शक्ल बनाई, कहीं आज भी तुम्हारा अपने फीचर वगैरह के चक्कर में सोराब गोट के जाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं? माज ने जानबूझ के तशवीश का इजहार किया, नहीं वहाँ नहीं जाना। फिलहाल इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि वो बंदा खुद ही आकर मुझसे मुलाकात कर लेगा और बाद में अगर मैं जरूरत महसूस करूंगी तो खुद वहाँ जाकर विजिट कर लूंगी। मुझे यकीन है कि तुम ऐसी जरूरत जरूर महसूस करोगी। मैं तुम्हारी टाइप पहचान गया हूँ, तुम उन लड़कियों में से हो जिनके दिमाग कुछ पुर्जे ढीले होते हैं। माज इस छोटी सी लड़की के अखलास पर मुख्तसर अरसे में ही मुतासिर हो चुका था, लेकिन जानबूझकर इससे ऐसी बातें कर रहा था। आपने मेरी टाइप बिल्कुल ठीक पहचानी है माज साहिब, मुझे वाकई वहाँ जाने के बगैर चैन नहीं आएगा। ये भी ऐन मुमकिन है कि मुझे एक बार फिर इसी रास्ते से आपको अपने साथ चलने की दावत दूं जिस पर सोनिया खान का घर है। अच्छा है, इस बहाने आप इसके दौलत पर हाजिरी दे दीजिएगा। वो वैसे भी दीदा दिल फराश राह किए बैठी होगी। इसने शोख लहजे में हंसते हुए जवाब दिया तो इसकी शख्सियत हस्बे मामूल जगमगा उठी। इस जगमगाहट ने एक पल के लिए माज की तवज्जो खींची, लेकिन फौरन ही इसने तवज्जो हटा ली और मुंह बनाकर बोला, शट अप, मैं किसी की बीवी पर नजर रखना पसंद नहीं करता, लेकिन किसी की बीवी की नजरें तो आप पर है ना। वो अब भी बाज नहीं आई। फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी क्लासेस कब ऑफ होंगी? मैं तो आज 2 बजे तक फारिग हो जाऊंगा। माज मौजू बदलकर बिल्कुल संजीदा हो गया। आपने शायद मेरी लिफ्ट वाली बात को संजीदा समझ लिया, थैंक यू सो मच। आज ये कार्य खैर राहिला के जिम्मे है, आप आराम से प्रोग्राम के मुताबिक आना जाना करते रहें। वो भी इस बार कदरे संजीदा हुई। ओके, मैं चलता हूँ, क्लास का टाइम होने वाला है, इससे पहले मुझे लाइब्रेरी से एक बुक भी इशू करवानी है। माज अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। ओके बाय। वो बैग की जिप खोलकर अंदर झांकने लगी। माज ने चंद कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर इसकी पुकार ने पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा माज, इसने ऐसा से कहा और फौरन नजरें पलटाकर दोबारा अपने बैग के अंदर झांकने में मसरूफ हो गई। लेकिन इसके इस एक पल के देखने ही ने माज को ठिठका दिया था। इस एक नजर में जो तहरीर दर्ज थी वो इसे सन्नाटे में लेकर आई थी। पहले सो गया और अब ये। इसे अपना दिमाग सुन होता महसूस हुआ और बड़ी मुश्किल से खुद हरकत में लाते हुए बोझल कदमों से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगा। इसके बदन में तो किसी आजाद पंछी की सी रूह थी और वो आजाद पंछी पैरों में बेड़ियां पड़ने के डर से बड़ी उलझन में मुब्तला हो गया था। तो तुमने तय कर लिया कि तुम हर सूरत कयूम सिद्दीकी का साथ दोगी? गुलजार आसिम ने गहरी नजरों से बुशरा को देखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स बाबा, मैं इस मामले में सवाल करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। कयूम सिद्दीकी के साथ जो ज्यादती हुई है और मेरे पास इस बात का सबूत मौजूद है तो मुझे लाजमी इनका साथ देना चाहिए। बुशरा के सामने कोई फाइल खुली हुई थी जिसका जायजा लेते इसने गुलजार आसिम की बात का जवाब दिया। क्या ये बहुत जरूरी है बेटा? मेरा मतलब है तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया। तुम्हारे किए गए इंकशाफात के नतीजे में कयूम सिद्दीकी और हुकूमत दोनों को खबर हो गई है कि इज़दानी बिल्डर्स वाले क्या कर रहे हैं। अब तुम इन लोगों को ये इज़दानी वालों से निमटने दो और खुद एक तरफ हो जाओ। तुम्हारा मुस्तकबिल इस मामले से जुड़ा रहा जरूरी तो नहीं है। आसिम गुलजार काफी मुस्तरब महसूस हो रहे थे। इस बार बुशरा ने फाइल पर से सर उठाया और हैरत से इनकी तरफ देखने लगी। क्या था बाबा, क्या बात है बाबा, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके देखने से उससे नजर चुराने लगे थे, इसलिए इसके में हैरत में मजीद इजाफा हो गया। इनसे पूछने लगी, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं बेटा, लेकिन अपनी इकलौती बेटी के लिए परेशान होना एक फितरी सी बात है। ये इज़दानी बिल्डर्स वाले खतरनाक लोग हैं। इनके हवाले से दबी जुबान में ही सही पहले भी कुछ किस्से सुनने में आते रहते हैं। इस किस्म के खतरनाक लोगों से तुम्हारा टकराव मुझे मुस्तरिब कर रहा है। गुलजार आसिम का लहजा इनकी बेबसी की चुगली खा रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आप जो एक निडर, बेबाक और रास को साफी की हैसियत से जाने जाते हैं। बुशरा की हैरत दोचंद हो गई। मैं सिर्फ सहाफी तो नहीं हूँ, मैं एक बाप भी तो हूँ। इनके नजरों में कदरे शर्मिंदा सी थी। अगर आप ऐसे कम हिम्मत बाप थे तो आपको मुझे इस फील्ड में आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। आपको चाहिए था कि मेरी परवरिश ऐसे खसूत पर करते। मैं सहाफत के बजाय होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन या इस किस्म के किसी दूसरे सीधे साधे सब्जेक्ट में मास्टर्स करती और किसी तालीमी इदारे में भर्ती होकर लगी बदी जिंदगी गुजारती रहती। आपकी बचपन से मुझे रास गोई, हक गोई और वतन परस्ती वगैरह के असबाक पढ़ाते रहे हैं। इसके अंदाज में यक वक्त दुख, गुस्सा और खफगी के जज्बात झलक रहे थे। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, अभी तुम नातजर्बाकार हो। इतने बड़े बड़े मगरमच्छों से निपटने के लिए तुम्हारी उम्र और तजर्बा दोनों बहुत कम है। फिर भी मैंने तुम्हें इस केस पर काम करने के लिए रोका था, लेकिन अब तुम्हें आउट ऑफ वे जाकर कयूम सिद्दीकी की मदद करने की जरूरत नहीं है। खुद इसके पास भी अपनी मलकियत के हवाले से सबूत वगैरह मौजूद है। वो खुद इस मामले से निपट लेगा। प्लीज बाबा खामोश हो जाएं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आप
आप कह रहे हैं? वो चीखी तो पड़ी। बुशरा बिल्कुल ठीक कह रही है गुलजार, आप जैसा आदमी ऐसी बात कैसे कह सकता है? हमने अपनी बेटी की तरबियत जिन खतूत पर की है, हमारे पास इससे ऐसी डिमांड करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। आयशा जो गुलजार आसिम की फरमाइशी चाय लेकर आई थी, बहुत खामोशी से बाप बेटी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी, बोल पड़ी, तुम वैसे तो इस पर इतनी रोक टोक करने की कोशिश करती हो और आज मैंने एक बात से रोका, तुम इसकी हिमायती बन बैठी। उन्होंने बीवी से शिकवा किया, मैं इसे जिन मामलात में रोकती टोकती हूँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इसे इन हदूदों को युद्ध में रखने की कोशिश करती हूँ जो एक मुसलमान औरत पर लागू होती है, लेकिन सच और हक का साथ देना तो हमारे दीन के अवलीन असबाक में से है। मैं अपनी बेटी को इससे कैसे रोक सकती हूँ? आयशा के अल्फाज ने बुशरा को खुश कर दिया। वो फौरन इनसे लिपट गई। स्वीट मम्मी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी राय अपनी जगह, लेकिन तुम्हें बहरहाल अपने बाबा की इजाजत लेना जरूरी है। आयशा ने नरमी से समझाया तो इसने सवाल नजर से गुलजार आसिम की तरफ देखा। तुम्हारी मम्मी की बात के बाद मेरे पास इनकार की गुंजाइश ही कहाँ है? गुलजार आसिम ने हथियार डाल दिए। मेरे इतने बहादुर बाबा को करना भी ऐसे ही चाहिए था। इसने फौरन इनके गले में बाहें डाल दी। अच्छा, अब बहुत ज्यादा बटरिंग मत करो और रेडी हो जाओ। मेरे ख्याल में कयूम सिद्दीकी तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा, उन्होंने शफकत से कहा, लेकिन इनकी आंखों में अब भी तशवीश के रंग थे। बुशरा ने ये रंग नहीं देखे और ज़ेरे मुताला फाइल के सफ़हात तरतीब से रखने के बाद अपना हैंडबैग चेक करने लगी कि आया इसमें तमाम जरूरी चीजें मौजूद है या नहीं। गुलजार आसिम इस दौरान खामोशी से बैठे चाय की चुस्कियां लेते रहे, जबकि आयशा वापस किचन में चली गई थी। गाड़ी के हॉर्न के फौरन बाद ही डोरबेल की आवाज सुनाई दी। वो लोग समझ गए कि कयूम सिद्दीकी आ चुका है। बुशरा अपने पास मौजूद फाइल अपना हैंडबैग लेकर बाहर की तरफ बढ़ी। गुलजार आसिम भी बेसाख्ता ही इसके पीछे चल पड़े। हस्बे तोको दरवाजे पर कयूम सिद्दीकी ही मौजूद था। वो 50-55 साल का एक गोरा चिट्टा आदमी था। वो 3-पीस सूट पहने हुए था। इसने गुलजार आसिम से मुसाफा किया और बुशरा को जल्द वापस घर पहुंचाने की यकीन दहानी करवाने के बाद इसे अपने साथ लेकर रवाना हो गया। थैंक यू सो मच घर के तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी हुई। वैसे तुम मेरे अंदाजे से बहुत ज्यादा कम उम्र हो। मैं सोच नहीं सकता था कि इतना जबरदस्त काम करने वाली लड़की इतनी कम उम्र होगी। रास्ते में इसने बुशरा से कहा, असल में मैंने होश संभालते ही तय कर लिया था कि छोटी सी एक लड़की पर काम करूं कि बड़े बड़े, इससे छोटी उम्र में बड़े काम करने लगी हूँ। बुशरा ने अपनी फितरी बेसाख्तगी से जवाब दिया तो हंसने लगा। फिर संजीदा होते बोला, तुमने सिर्फ बड़ा काम नहीं किया बल्कि एक बड़े काम में आने वाली रुकावट का भी बर वक्त भांडा फोड़ दिया। यजदानी बिल्डर्स वालों ने जिस जमीन पर कब्जा कर रखा था वो मैंने हॉस्पिटल की तामीर के लिए खरीद कर डाली हुई थी। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट में ही अमेरिका चला गया था। वहाँ मैंने अपनी काबिलियत में भी इजाफा किया और पैसा भी बहुत कमाया। ये सब मैं यहाँ रहकर नहीं कर सकता था, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रही कि मुझे अपने वतन का कर्ज है और मुझे ये कर्ज उतारने वापस आना है। यह एक अच्छे हॉस्पिटल की तामीर का मंसूबा बरसों से मेरे दिल में पल रहा है और इस बार मैं इसलिए पाकिस्तान आ रहा था कि हॉस्पिटल की तामीर की इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर सकूं। नेट पर तुम्हारी तैयार करदा रिपोर्ट पड़ी तो मालूम हुआ कि कोई मेरे ख्वाब पर शब खून मार चुका है। मैं तो पहले ही आ रहा था, इस खबर के फौरन बाद ही आ गया। यहाँ एक दोस्त के तवज्जुह से एक अच्छे वकील से राब्ता हो गया है और इसने बहुत उम्मीद दिलाई है कि फैसला हमारे हक में होगा। कयूम सिद्दीकी बता रहा था। वो जरा सा इसके लिए रुकिए तवज्जो से इसकी बातें सुन रही थी। खिड़की से तरफ से गुजरता हुआ ट्रैफिक भी से दिखाई दे रहा था। पिछले दिनों पेश आने वाले वाकयात और मिलने वाली धमकियों के बाद घर से बाहर वो अपने तरफ से बाखबर और चौकन्ना रहने की कोशिश करती थी और इस वक्त भी लाशुरी तौर पर ही इसकी नजरें इधर उधर भटक रही थी। तमाम गुफ्तगू पर तवज्जो मरकूज होने की वजह से वो पूरी तरह चौकन्ना नहीं थी, इसलिए इन दो मोटरसाइकिल सवारों पर बिल्कुल आखिरी लम्हात में इनकी नजर पड़ी जो दाईं तरफ से अचानक ही नमूदार हुए थे और इनकी गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ चलने लगे थे। मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के ने सर पर हेलमेट पहन रखा था जिसकी वजह से इसकी शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, जबकि इसके पीछे बैठे हुए लड़के का चेहरा बड़े बड़े सन ग्लासेस और घनी दाढ़ी में खासा छुपा हुआ था। पीछे वाले लड़के के हाथ में बुशरा ने 9mm पिस्टल की झलक देखी और इस तरह तौर पर झुकते हुए चीखी, झुक जाएं कयूम साहिब। इसके अल्फाज फायरिंग की शोर में दब गए और इसने अपने बाएं बाजू में लोहे की गर्म सलाख जैसी घुसने की तकलीफ के अलावा भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में क़यामत से टूटती महसूस की, लेकिन फिर जल्द इसके महसूसात ने इसका साथ छोड़ दिया। तारीकी की दबेस है जो इसे हर एहसास से बेगाना कर चुकी थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अपने हरीफों पर कहर बनकर नाजिल होने वाले एक सरापा इंतकाम नौजवान की तहय्युर अंगेज दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।